हेलो गाइस, वेलकम टू ACEJEE चैनल। दिस इज संभव हियर और आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन JEE एडवांस्ड 2012 एंड दीज आर क्वाइट इजी। आई मीन JEE एडवांस्ड नहीं है, वो IIT JEE 2012 है और उसमें ये सवाल पूछे गए थे। दीज क्वेश्चंस आर फेयरली सिंपल and they are easy to solve, easy to manipulate, but the thing is that you must understand the concepts that were involved in these kind of problems. ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप लोगों को क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पता हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो दीज क्वेश्चंस विल बी वेरी सिंपल, दीज क्वेश्चंस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड दीज क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी टू सॉल्व. Okay, so that is the important thing. So we will understand the concepts that are involved in solving such kind of problems. So we have our first question. This question is from the chapter 3D geometry. So 3D का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है कि we have to find the equation of plane that is passing through the line of intersection. Mind it. ठीक है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स मतलब हमारे पास एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है एंड and at a distance of this from this. Okay, so I'll just make a rough sketch for this. ठीक है, तो सबसे पहले I'll have one plane. Okay, this is my first plane. Just a minute, let me just check one or two things before we proceed. Yes, I think it's fine. So I'll just repeat one thing. Okay, so this is our first plane. Okay, we have our first plane. Let us say this is our second plane. This is intersecting. Okay, so for this to intersect, it must be, this will be line of intersection, and this plane will be somewhat like this. It will be passing in this format. So this is our plane 2 and we have this as our plane 1. Okay, so we have our plane 1, we have our plane 2. Now what is important, that we have to write the equation of a plane that is passing through the point of line of intersection of these two planes. इसका क्या मतलब है, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई भी दो कर्व्स हैं, लेट्स से दिस इज कर्व C1 and this is C2, then the equation of any third curve that is passing through the line of intersection of C1 and C2 is C1 plus lambda times C2, okay, is equal to 0, and this will follow in planes also. ठीक है, so this is the entire concept. Plane को we represent by pi, so it will be pi1 plus lambda times of pi2 is equal to 0. This is our equation of plane. ठीक है, मोर इम्पोर्टेंटली द नेक्स्ट थिंग इज दैट अब क्या करेंगे, हम इससे क्या कर रहे हैं, एक इक्वेशन जनरेट कर रहे हैं एंड वंस वी जनरेट द इक्वेशन हम उसका डिस्टेंस देख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन देख सकते हैं एंड वी कैन इक्वेट इट टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड देन वी कैन फाइंड विच ऑप्शन मैचेस. ठीक है, we'll find lambda from that and we can thereby find the equation. So I'll just start. Okay, तो यहाँ पर क्या होगा, x plus 2y plus 3z minus 2. This is our pi 1 plus lambda time what is our pi 2. It is x minus y plus z minus 3 and this becomes equal to 0. Great. ठीक है, दिस इज द कॉमन थिंग. सो यहाँ पर जब भी ये इससे पास कर रहा होगा, इस लाइन से पास कर रहा होगा, ये प्लेन 1 पे भी है, प्लेन 2 पे भी है, तो दोनों के लिए ये टर्म्स 0 हो जाएंगे और हम 0 इक्वल टू 0 कर सकते हैं. दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट. और आई कैन राइट दिस एज 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस 2 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ वाई प्लस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जेड is equal to 2 plus 3 lambda. This is our equation of plane. This is the required equation. Now what we are supposed to find, if we are supposed to find the distance of this plane from this point. Okay, so we have our plane as 1 plus lambda times x and what else we have, plus 2 minus lambda times of y plus what, 3 plus lambda times z is equal to 2 plus 3 lambda. Now we have to find it through 3 comma 1 comma minus 1. Okay, let's evaluate this distance. So for evaluating this distance, we can use the distance formula. So it is 1 plus lambda times 3 plus 2 minus lambda times 1 plus 3 plus lambda time of minus 1
is minus 2 minus 3 lambda upon 1 plus lambda square plus 2 minus lambda square plus 3 plus lambda स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड इसका मॉड्यूलस कर सकते हैं so we will get the distance. Now I know that this is equal to 2 upon square root of 3 and this is equal to 3 plus 3 lambda plus 2 minus lambda minus 3 minus lambda minus 2 minus 3 lambda mod में ही है ये सब चल रहा upon what is this 1 plus lambda square is lambda square plus 1 plus 2 lambda and this is lambda square plus 4 minus 4 lambda and what is this lambda square plus 9 plus 6 lambda. ओके और ये सब स्क्वायर रूट में चल रहा है तो ये स्क्वायर रूट हमने लगा दिया. इससे क्या बन रहा है हमारे पास ये 4 लैम्डा और 6 2 8 तो यहाँ पर हमारे पास 4 लैम्डा बचेगा. 1 प्लस 4 9 1 10 से 4 14 एंड दिस इज 3 लैम्डा स्क्वायर. ग्रेट वी हैव दिस एंड इधर भी क्या है 3 लैम्डा से 3 लैम्डा कैंसिल लैम्डा लैम्डा माइनस 2 लैम्डा बचेगा ऊपर और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया 3 से 3 कैंसिल हो गया. बहुत सही ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास व्हाट आर वी लेफ्ट विद इज वी आर लेफ्ट विद इज 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 2 लैम्डा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 14. तो ऐसा करते हैं वी कैन स्क्वायर बोथ साइड्स. ठीक है वाई एम स्क्वायरिंग बिकॉज मैं मॉडुलस को अवॉइड करना चाह रहा हूँ. आई डोंट वांट टू केसेस आई विल जस्ट स्क्वायर एंड आई विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू फॉर लैम्डा. सो इट इज 4 upon 3 is equal to 4 lambda square upon 3 lambda square plus 4 lambda plus 14. ग्रेट 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल एंड then we'll can क्रॉस मल्टीप्लाई 3 लैम्डा स्क्वायर. बढ़िया ये और ये भी हो गया कैंसिल तो 4 लैम्डा इक्वल टू माइनस 14 आ गया यानी कि लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया माइनस 7/2. और जब आपका लैम्डा का वैल्यू है आप इस इक्वेशन में डाल लो या फिर आप इस इक्वेशन में डाल लो. तो लैम्डा का वैल्यू माइनस 7/2 डालना है तो जब आप माइनस 7/2 डालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 4y प्लस 6z माइनस 4 माइनस 7x प्लस 7y ओके प्लस 7y माइनस 7z ओके एंड प्लस 21 इज इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व कर लो और हमारे पास क्या बच रहा है माइनस 5x 11y माइनस z इज इक्वल टू माइनस 17 और जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये ए ऑप्शन जो है ये मैच कर जाएगा. ठीक है सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. दिस वाज आस्क्ड इन 2012 पेपर 2. Okay, quite a simple problem and yes it is a very straightforward and a direct problem that was asked in 2012 JEE Advanced or I must say IIT JEE paper 2. Okay great, so this was our first question. Let us move to the next problem now. Okay, so we did this in this manner. Now this problem is from SOT, a very simple problem yet a straightforward problem. We have been given that PQR is a triangle and this triangle has an area delta. We are aware of the area delta and we have our side lengths A, B and C where A, B, C are lengths of sides of triangle opposite to P, Q and R. Okay, so what are we having now? I'll just briefly draw a triangle. So we have P, Q, R and R and A is opposite to P, so this is 2 and A is opposite to P, B is opposite to Q, so this is 7/2 and C is opposite to R, so it is 5/2. I have 3 sides and I have to find the value of this expression, so I'll just write this expression once again. So this is 2 sin P minus sin 2P, I can write as 2 sin P cos P. Okay, and this is 2 sin P plus 2 sin P cos P. And when I'll solve it, it will become 1 minus cos P upon 1 plus cos P. This is equal to 2 sin square P by 2 upon 2 cos square P by 2, or I can write it as tan square P by 2. Now everybody must know the half angle formula. What is the half angle formula for tan P by 2? या tan अगर हम
tan a by 2 ले लें, तो दिस इज s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s इंटू s माइनस a का स्क्वायर रूट। ठीक है, एवरीबडी नोज इट। कैसे आया ये, हमने कहाँ से निकालते हैं, हम ये निकालते हैं कॉस ए को जब हम सॉल्व करते हैं एज 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, और कॉस ए का हमारे पास एक्सप्रेशन आता है विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, तो वो कितना होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास यहाँ से कॉस ए बाई 2 मिलता है, यहाँ से साइन ए बाई 2 मिलता है, तो उस हिसाब से आप निकालते हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट अ रिकैप ऑफ दोज थिंग्स। यू कैन रेफर टू मेनी रिसोर्सेज। ठीक है, मेरे अपने चैनल पे भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, यू कैन चेक फ्रॉम देयर एज वेल, और यू कैन सिंपली रिमेंबर इट इज ऑल अप टू यू। ठीक है, हाउ यू प्रिपेयर, इट्स ऑल अप टू you. I don't have any say in your preparation now, but at least what I know is that you can understand the concepts. So this is tan square of p by 2. You know tan square of p by 2. So what is tan square of p by 2? Now this p by 2, p will behave like a. ठीक है, so this will be s minus b into s minus c upon s into s minus a. Now of course हमने square root पहले ही हटा दिया है। ठीक है, we have removed the square root because it is actually in a square. So this will be our expression. Now what is more important to understand is कि हमारे चार ऑप्शंस में हमें डेल्टा के फॉर्मेट में दिया गया है, तो इफ वी कैन इवेलुएट दिस एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ डेल्टा, डेल्टा अगर हमारे डिनोमिनेटर में आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो what are we supposed to evaluate, or I can write it over here only. Our delta is equal to square root of s into s minus a into s minus b into s minus c. Everybody knows it, राइट, सभी को पता ही है। तो डेल्टा स्क्वायर निकाल लो, ये कहाँ से आया, ये आया हीरोन्स फॉर्मूला से। तो डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ से हम डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी लिख लेते हैं, और इसका वैल्यू लिख लेते हैं एस इंटू एस माइनस ए। नाउ दिस इज नथिंग बट अ सॉल्विंग टेक्निक। ठीक है, नथिंग एल्स, बिकॉज हमारे पास देखो डेल्टा सारे सारे ऑप्शंस में डेल्टा इज इन डिनोमिनेटर, एंड इस वाले एक्सप्रेशन में हमारा डिनोमिनेटर है एस इंटू एस माइनस ए, सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दैट, नथिंग एल्स। ओके, ग्रेट। सो व्हाट आर वी एक्चुअली लेफ्ट विद नाउ? Now our final expression, this final expression, this our required expression, I'll write required expression, this is equal to s minus b into s minus c over s into s minus a, that I can replace by delta square upon s minus b into s minus c, or this expression will become s minus b into s minus c upon delta का पूरे का square। ठीक है, now you know the side lengths. What is side lengths? A is 5, I think, right? 5 है ना? नहीं, sorry, A is 2, B is 5, 7 by 2, and C is 5 by 2. These are our side lengths. So can't we find S? We can find S, A plus B plus C by 2. तो 7 5 12, और ये बन जाएगा 6 और 2 8, तो S आ जाएगा 4। ठीक है, तो S माइनस बी आपका कितना आ जाएगा, 4 माइनस 7 by 2, दैट इज हाफ। s माइनस से c कितना आ जाएगा, दैट विल बी 3 by 2, एंड दिस इज अवर डेल्टा, और इसका हमारा स्क्वायर है, दिस इज अवर आंसर। सो 3 over 4 डेल्टा का स्क्वायर, दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो 3 over 4 डेल्टा का स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, एंड यस, आवर सी ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम, अगेन दिस वाज आस्क्ड इन 2012 पेपर 2 ऑफ जेई एडवांस्ड। ठीक है, और आईटी जेई बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, दिस इज रफ फॉर रफ। ठीक है, let us move to the next problem. This is the final problem of the day, and this is also a decent problem, I must say. This is not a very tough problem, this is a straightforward problem, and this is from chapter you can this is probability, of course. ठीक है, so our first thing, let us try to understand what is the situation. See, probability, permutation, combination, binomial, इन तीनों में where your combinatorics is involved, what is important for you to understand इसकी हमारे पास ये पर्सपेक्टिव होना चाहिए, हमारे दिमाग में कैसे ये वर्क करना चाहिए। अवर वर्किंग रूल मस्ट बी लाइक कि हमें पता होना चाहिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इनिशियली। ठीक है, सो वी विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड देन वी कैन अप्लाई व्हाट लॉजिक्स वी हैव। ठीक है, दिस इज अ लॉजिक बेस्ड सिनेरियो, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इन दिस मैनर. Okay, so what is the question? So question is that there are 4 dice that are given to you. I'll draw the 4 dice. Let's say d1, d2, d3 and d4.
We have 4 die given to us, and each of them has 6 faces numbered 1 2 3, and they are standardized, and they are rolled simultaneously. uh, what is the probability that d4 shows a number appearing on one of d1 d2 और d3? ठीक है, मतलब d4 पे कोई नंबर आया, लेट्स से x नंबर आ गया d4 पे, ठीक है, तो ऐसा सिनेरियो होना चाहिए कि वन ऑफ d1 d2 d3, मतलब या तो D1 पे आ जाए x, या D2 पे आ जाए, या D3 पे आ जाए, या D1 D2 पे आ जाए, या D2 D3 पे आ जाए, या D3 D1 पे आ जाए, या तीनों पे आ जाए, है ना? तो ऐसे केसेस, इन सभी केसेस की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है? ठीक है, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग इन मोर प्रिसाइज मैनर। ठीक है, हमारे पास D1 के कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं? 6 पॉसिबल हैं। D2 के कितने हैं? 6 पॉसिबल हैं। D3 के कितने हैं? 6 पॉसिबल हैं। D4 के कितने हैं? 6 पॉसिबल हैं। ठीक है, D4 पे कोई भी नंबर आने का हमारे पास 6 आउट ऑफ 6 केसेस हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड इट इन दिस मैनर कि यहां पर हमारे पास कोई ना कोई नंबर आया, अब D4 पे नंबर आ चुका है, अब D1 पे हम वही नंबर ले आए। ठीक है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6, और बाकी केसेस में दैट विल बी 5/6 एंड 5/6। ठीक है, क्योंकि कुछ और नंबर ही आना चाहिए, अदरवाइज केसेस इंटरसेक्ट कर जाएंगे, पर हमें क्या चाहिए कि सिर्फ D1 पे आए, तो बाकी सालों में ये केसेस आएंगे। सिमिलरली यही चीज हम D2 के लिए करते हैं, और सिमिलरली हम यही चीज D3 के लिए करते हैं। ठीक है, एंड रेस्ट विल बी एज इट इज। ठीक है, कांट यू फाइंड दैट दिस इज काइंड ऑफ बाइनोमियल? क्यों? बायनोमियल की प्रॉपर्टी जैसी कुछ फॉलो हो रही है कि आपके पास तीन चीजें हैं, तीन में से किसी एक पे तीन में से किसी एक पे आपके पास 1/6 चांस है, और बाकी दो पे 5/6 का चांस है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये केस होगा। देखो D4 पे जो भी नंबर आया उसमें ये केस आ सकता है। ठीक है, कि एक एक बार हो। अब ऐसे ही आप दो बार भी कर सकते हैं कि 3C2 है, दो किन्हीं दो पे सेम आया, तो किन्हीं दो पे सेम आया तो ये 1/6 का स्क्वायर और इंटू 5/6 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा है कि तीनों पे सेम आ जाए तो हमारे पास यही पॉसिबिलिटी बचेगी। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स फॉर योर सेक ऑफ क्लैरिटी मैं कह सकता हूं कि आपने पहले D4 पे एक नंबर लिया, ठीक है, तो दैट इज टेकन इन 6/6, ये D4 के लिए देखा, फिर आपने D1 D2 D3 अकरिंग वंस, अकरिंग ट्वाइस एंड अकरिंग थ्राइस, ये देख लिया। ठीक है, ऑफ कोर्स चार नहीं है, हमारे पास तीन ही केसेस हैं जो अराइज कर सकते हैं। तो बस अब इसको, इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है, एंड दैट इज अवर आंसर, नथिंग एल्स। दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। ऑल यू नीड टू डू इज टू अप्लाई योर माइंड, अप्लाई योर लॉजिक, दैट इज इट। ठीक है, एंड इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। सो दिस इज 3, अच्छा 1/6³ तो वी कैन टेक कॉमन। Now this is 3C1 into 5 square, that is 75. So 3C2 is again 3 and it is into 5, so 15. And 3C3 is 1 and 1. Okay. So this is 90 and this is 91 upon 6 6 are 36, 6 are 216. Let us check, do we have an option like that? 91 upon 216. Yes, we have an answer, and yes, our A option becomes the correct answer to this problem. Okay, this was a very direct problem and a very straightforward expression that you wished to find. Okay, so that's it from this video, guys. I hope that you understood the questions, you understood the concepts that were involved in this video, in these questions. Thank you everyone for watching. Stay safe, stay happy, and keep watching ACEJEE for more such videos. Thank you and goodbye.